Hello, thank you so much again for watching my video. I'm not a YouTuber. I don't want your likes and subscribe, but I want to help you. So be patient and please watch this full video, not for the view purpose, just for knowledge purpose, because I'm gonna give you a literally deep information and the behind the tricks and how it really works and how you can be shortlisted as a candidate or as a cabin crew or a flight attendant. And my first name is Muhammad, my second name is not Aryan, so I'm not Aryan, this is a sample name, and this is a sample photo as well. This is not my picture, so the rest information is 100% true and very accurate. And this I'm sorry, this CV and the resume is designed by me. I am the one who created this CV, and anyone can copy that, no problem at all. And at the moment I'm showing you a PDF format, but later on you can request me to just send you format in a Word so that you can easily edit it and put your data here. Okay, perfect. Now let's just start. So put your name. The first name should be in the upper side, okay, or on the top, okay, and the second name should be down. All right, now put your number of experience. Mine was 5 years in a customer service, and the CX mean is a customer experience. So you can, it's up to you. You can remove it or you can add, keep as it is. This is just this kind of attributes, attributes of words which can be picked by this ATS. What is ATS? ATS is the applicant tracking system, a software which normally the companies are using for their shortlisting purpose, right? Okay, come to the second part, which is very much important as well, which is your contact details. Guys, please be very much professional at this time or at this moment. Your email should be very much professional. Don't put your email at gmail.com. This is a sample. So just like you have to put like very much professional email. I'm not asking you to go and buy a business email, but I'm saying that it should be professional, not like papa ki pari at gmail.com or baba ka shahzada at gmail.com. No, it should be like आई नो लोग ऐसे ईमेल्स यूज़ नहीं करते हैं, बट जस्ट फॉर द फन पर्पज़ आई एम सेइंग, आपको हंसाने के लिए तो आप यूज़ करिए. For example, let's take an example from the same name, Muhammad Aryan. So you can use Aryan, for example, is your surname or second name, for example. So you will put like Aryan dot inbox at gmail.com. अगर आपको ये मिल नहीं रहा है, so what you can do is aryan.inbox, आगे कुछ न्यूमेरिकल्स डालिए. फॉर एग्जांपल इस साल का 2022 लगा दिए, ईयर 2022 ये जो भी बोलते हैं आप, ये लगाइए @gmail.com. मेरा क्या होता था, मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको. मैं लिखता था contact.myName फिर कुछ न्यूमेरिकल्स @gmail.com. सो दिस इज़ वेरी प्रोफेशनल. सो मेरे जितने भी फ्रेंड्स जो हैं, जो मुझे जानते हैं उनको मैं यही ईमेल्स बना के देता हूँ, तो उनको पता है कि मैं सबको यही सजेस्ट करता हूँ. तो contact.yourname फिर कुछ वर्ड्स न्यूमेरिकल्स और @gmail.com. सो न्यूमेरिकल्स भी कुछ 786 वाले नहीं डालने हैं, 786 ऐसे लाइक शुड बी वेरी डिसेंट ऑल्सो. ओके लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. अगर आप पाकिस्तान इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो यू हैव टू पुट योर सिटी एंड देन योर कंट्री कोड. फॉर एग्जांपल मैं दुबई में था तो मैंने मरीना दुबई लिखा और कंट्री कोड है UAE. तो लेट्स से टेक एग्जांपल फ्रॉम सिटी सियालकोट. आई एम फ्रॉम सियालकोट बाय द वे. तो आई विल पुट सियालकोट फिर कॉमा फिर पाक PAK. ओके, तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जो मैं समराइज़ कर रहा हूँ ताकि ATS जो सॉफ्टवेयर है वो उसको पिकअप कर ले. ओके, तो कंट्री कोड भी ऑब्वियसली जिस कंट्री में है वहीं लगा. ये नहीं आपने भाई का दुबई का नंबर लेके डाल दो. डोंट डू दैट. ओके, जस्ट किडिंग. ओके, अबाउट मी. अच्छा, ये जो अबाउट वाला सेक्शन है ये आपके दो काम आने वाला है. एक तो आपकी CV में गुड इंप्रेशन डाल रहा है. सेकंड, आपने देखा होगा शायद अगर किसी का एक्सपीरियंस रहा है ऑनलाइन वीडियो इंटरव्यू का, तो नहीं भी रहा है शायद आ भी जाए आपके इंटरव्यू में. वो क्या करते हैं, कुछ 3 क्वेश्चंस होते हैं जो डिजिटल वीडियो इंटरव्यू में पूछा जाता है, और एंड पे मोस्टली मेरे साथ क्या होता है, मुझसे वो पूछा करते थे ये ऐड सम कमेंट्स या यू हैव 2 minutes टू ऐड सम कमेंट्स. तो मैं क्या करता था, हमेशा से ये बोलता था. तो लेट्स जस्ट रीड इट. बोलना भी ऐसे ही आपने. ओके, बाय द वे सबका अपना अपना स्टाइल होता है, बट आई वॉज यूजिंग ऑलवेज बिकॉज आई ऑलवेज कीप स्माइल ऑन माई फेस एंड आई जस्ट कीप सेइंग द सेम थिंग. बट आई एम गोना रीड नाउ. सो इट्स गोना बी
आई एम एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग। ऐसे ही आपने एक्ट करना जैसे आप न्यूज़ कास्टर हैं, खबरें पढ़े हैं टीवी पे बैठ के, एंड यू आर जस्ट स्पीकिंग। ओके, सो आई एम एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग and I love working under pressure. My strong communication and interpersonal skills enables me to become a successful flight attendant or cabin crew or successful candidate. ये सब आप पे है डिपेंड करता। ओके, इन एडिशन टू माई पॉजिटिव नेचर आई एम फास्ट लर्नर एंड कल्चर अडॉप्टिव। थैंक यू। ऐसे करके बंद कर दीजिए, उसके बाद में फ़ोन नहीं तोड़िएगा। आई मीन जस्ट क्लोज द ऐप। नहीं, ऐप नहीं, इट्स आप जस्ट किडिंग। तो जो भी है ऐसे आपने हैप्पी एंडिंग करनी है। ऑलवेज स्माइल एंड सेइंग गुड वर्ड्स। प्रोनाउंसिएशन प्लीज़ जल्दी से ना करिएगा। हमारे आई नो सम पीपल हु जल्दी जल्दी से बोल देते हैं कि मतलब ख़त्म, यू नो इट्स नॉट। यू हैव टू गिव प्रॉपर टाइम and good accent and smile is very important. So you will be saying like, hi, thank you so much for your time. I am extremely hardworking. I would love to work under pressure and my you can change also, right? आपको just लकीर का फ़कीर नहीं बनना, but I mean, I'm not saying just copy 100%. Just you know, just be like a genuine person. Okay, आप रहें। तो ये हो गया। फ़ोटो प्लीज़ वाइट बैकग्राउंड के साथ डालिएगा और टाई लगा लीजिएगा इसमें, बिकॉज दिस इज़ नॉट माई फ़ोटो। सो मैंने गूगल से लिया तो इसने टाई नहीं लगाई थी, तो ये बस इसी तरह का स्टाइल रखिएगा जो भी है। एंड आई एम सॉरी, क्लीन शेव होना चाहिए, ठीक है। देखो ये सारे गुनाह मेरे साथ पे आ रहे हैं, मैं लोगों को बोल रहा हूँ क्लीन शेव करिए, तो ये सब दिस इज़ योर ओन चॉइस, दिस इज़ 100% योर। आई एम जस्ट गिविंग यू अ सैम्पल हाउ was my experience exactly in what you call in the process of applying for cabin crew in different airlines. I had applied in Emirates airline, I was shortlisted in Fly Dubai, I was shortlisted in Qatar Airways. Okay, so ये तीनों एयरलाइंस जो है वो अल्कोहल सर्व करती हैं, तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया। बट आई एम गोइंग टू अप्लाई इन एयर अरेबिया। मैंने सुना है, मैंने रीड किया है, मैंने रिसर्च किया कि एयर अरेबिया अल्कोहल सर्व नहीं करती है। अगर आपको लगता है या आपको पता है कि वो सर्व करते हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो। बट एज ऑफ गूगल या एज ऑफ माई इन्फॉर्मेशन एज ऑफ नाउ व्हाट आई अंडरस्टैंड इज एयर अरेबिया इज़ नॉट सर्विंग अल्कोहल। And plus top of this I'm also applying in some Islamic airlines, for example Saudi airline, Kuwait airline, and in my country also some Pakistani airlines as well. All right, so but if you know some airlines having or they're not serving alcohol on board during your flights or during Ramadan, but just do let me know. I'll definitely apply. I really appreciate and thank you so much for your time as well. Okay, now come to the personal information. बस ऐसा डालिए, मोहम्मद जो भी आपका नाम है, नेशनलिटी एंड रिलीजन, मैरिड, ये सारा फॉर्मेट ऐसे ही आना चाहिए। बाय द वे वीज़ा स्टेटस मेरा तो खैर आई वाज यू नो आई हैड यू नो व्हाट यू कॉल रिजाइंड दैट टाइम, तो मैं तो एम्प्लॉयमेंट कैंसिल आया था। एक्सपायरिंग डेट कुछ और था। बाय द वे मैंने आज की डेट डाल दी है जस्ट फॉर द सैम्पल पर्पस। अवेलेबिलिटी, अब इफ़ यू कैन जॉइन इमीडिएटली गुड, बट अगर काम कर रहे हैं किसी कंपनी में तो 1 मंथ का नोटिस पीरियड लिखना है आपने लिखना है 1 मंथ नोटिस पीरियड। ओके, आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। एकेडमिक यहाँ आएगा, एकेडमिक एजुकेशन आएगा, आई एम सॉरी। तो ये जब मैं आपको वर्ड फॉर्मेट दूंगा तो उसको सेट कर लीजिएगा, जहाँ होना चाहिए वहाँ रखिएगा। ओके, तो मेरा तो सिंपल बैचलर ऑफ आर्ट्स है, मैंने एज अ प्राइवेट कैंडिडेट किया हुआ है, कोई इतनी लंबी चौड़ी क्वालिफिकेशन नहीं है। दे डोंट रियली केयर अबाउट योर एक्चुअल क्वालिफिकेशन, बट जैसे ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो ग्रेजुएशन में आपने बीए में किया हुआ है, ग्रेजुएशन आपने बीएससीएस में किया, कंप्यूटर साइंस में किया है, इंटरमीडिएट कॉमर्स में, सॉरी इंटरमीडिएट बैचलर्स कॉमर्स में किया है, कुछ भी किया है, वट एवर दे डोंट केयर। तो आप ऐसे डालिए जैसे मैंने डाला है, ठीक है। बाय द वे मैंने कॉमर्स तो नहीं किया था, मैंने एडमिशन लिया था कॉमर्स का, तो ये मैंने वही डाल दिया। बट मैंने एफ़ए किया है, फिर बीए किया, तो ये डिप्लोमा इन कस्टमर सर्विस मैंने कोई नहीं किया हुआ, बट मुझे पता है कि व्हाट एग्जैक्टली कस्टमर सर्विस इज़, तो जी मैंने डाल दिया, ठीक है। तो ये एकेडमिक में मैंने डाला। ओके, लैंग्वेज स्किल्स बस ये देख लीजिए, आप डालिए आपकी क्या स्किल्स हैं, उस हिसाब से सेट कीजिए। कौन कौन सी लैंग्वेज आप ऐड करना चाहते हैं रिमूव करके डाल दीजिए। कंप्यूटर स्किल्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर लिटरेसी इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर एनी जॉब। ओके, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब उडू क्या है? उडू इज़ अ ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर सो मैनी बिजनेस पर्पस, B2B, B2C, कस्टमर टू कस्टमर, बिजनेस टू बिजनेस, सो मैनी थिंग्स। ओके, बहुत सारी कंपनियाँ आजकल तकरीबन उडू यूज़ कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ। उडू क्या होता है? गूगल कीजिए, आई एम सॉरी यूट्यूब कीजिए जल्दी से। ओके, बट अगर इसको रहने देना चाहते हैं, बट इफ़ यू वांट ऐड समथिंग एल्स जस्ट रिमूव इट एंड ऐड एनी अदर आइकॉन। ओके, ऑफिस तो सबको पता होगा ऑफिस क्या होता है, तो ये रहने दीजिएगा। और साथ ऑफिस का आइकॉन है जो लेटेस्ट
जो भी आपको पता है। ओके, तो फ़ोटोशॉप क्या होता है? फ़ोटोशॉप भी नॉर्मल है, तो मैंने डाल दिया, आपको भी आता होगा, मुझे तो आता है। CRM इज़ अ कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है जो बहुत सारी कंपनी यूज़ करती हैं, तो तकरीबन आई थिंक आपको रहने देना चाहिए। AWS इज़ अ न्यू थिंग, मैंने थोड़े दिन पहले ही इसके बारे में कुछ नॉलेज लिया है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स कॉल्ड अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, एक क्लाउड कंप्यूटिंग है। लेकिन इसका जॉब के साथ कोई लेना देना नहीं है, जस्ट गुड इंप्रेशन के लिए मैंने डाल दिया। मुझे आता जाता भी कुछ नहीं है, बट नॉलेज है, तो मैंने डाल दिया जस्ट फॉर गुड इंप्रेशन। ओके, लेट्स कम टू द सेकंड ही बोल रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट। ओके, हॉबीज़ के सेक्शन में आप यही रहने दीजिए। फोटोग्राफी डाल दिया, पेंटिंग डाल दी, मुझे दोनों का कोई शौक़ नहीं है, तो इस वजह से मैंने डाल दिया फॉर द गुड इंप्रेशन। अच्छा, अब आएंगे आप नीचे सेकंड पेज। अब देखें, आपको पता भी नहीं शायद चला होगा कि मैं सेकंड पेज पे आ गया। ये देखें, यहाँ आया सेकंड पेज। अब सेकंड पेज को जूम करते हैं। यहाँ मैंने प्रोफेशनल स्किल्स को डाल दिया है थोड़ा। ये जो सेक्शन है ये बहुत मैंने सोच समझ के डाला है यहाँ। क्यों? बिकॉज दिस ATS जो है सॉफ्टवेयर, जो उनका हर कंपनी का जो सॉफ्टवेयर होता है ना, जो आपकी CV को शॉर्टलिस्ट करता है, उसका बड़ा काम होता है। वो HR का आधा काम जो है ना वो निपटा देता है। हाउ इट रियली वर्क्स, the software picks the attributes, some words, some important words, वो पिक करता है। ATS इज़ द एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, आप सबको पता होगा, हर कंपनी का डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। मुझे नाम भी आते हैं कुछ के, टैलियो है, ग्रीन हाउस है, एंड और भी बहुत सारे हैं, बट एनीवे आप कैसे क्या लेना देना। तो ये सेक्शन में मैंने ये कुछ अपनी स्किल्स डाल दी हैं। मेरे पास वैसे ये स्किल्स हैं भी, बट अगर आप इसको ऐसे रहने देना चाहें तो ये अच्छा है आपके लिए, बिकॉज इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो सॉफ्टवेयर जल्दी से इनको पिक करेगा, आपकी CV को शॉर्टलिस्ट करेगा, आपकी CV आ जाएगी शॉर्टलिस्ट लोगों में, और फिर जनाब आपको इनविटेशन आएगा। देन यू हैव टू गो फॉर द सेकंड स्टेप विच इज़ असेसमेंट। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या अभी एंड पे बता देता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाएंगे। ओके, तो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी अगर आप बोर हो रहे हैं, बट आई एम नॉट अ प्रोफेशनल यूट्यूबर, तो इस वजह से मुझे बातें ज़्यादा करनी नहीं आती हैं जो वो करते हैं। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, आई एम सॉरी, बट शायद समराइज़ नहीं करना आता, आई एम रियली सॉरी। तो खैर, आपकी ही फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। ओके, आपकी मर्ज़ी है, देखनी है नहीं तो बंद करो भाई, थैंक यू। ओके, वर्क एक्सपीरियंस वाला आज ये पार्ट आ गया। अच्छा जी, ये सारा मेरा सच्चा एक्सपीरियंस है, झूठा कोई भी नहीं है। मैं ऑफिसर कस्टमर सर्विस, कॉन्टैक्ट सेंटर का मतलब है कॉल सेंटर। तो मैंने आई वाज अ ऑफिसर कस्टमर सर्विस इन दिस कंपनी। ओके, तो जो मैं काम करता था ये मैंने सारा डाल दिया, मैं क्या क्या करता था। और उसके बाद मेरी उससे पहले वाली जॉब थी असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर की। मैं असिस्टेंट मैनेजर था, वो भी कस्टमर सर्विस के डिपार्टमेंट में था, एक रेस्टोरेंट में। तो वो मैंने साथ लिखा हुआ, कंट्री भी लिखा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। वहाँ क्या करता था, डाल दिया। और लेकिन मैंने स्टार्ट कैसे लिया था कैरियर का, ये देखें, मैंने ईयर भी साथ लिखा हुआ है, ये देखें, आप ईयर्स को भी देखिए, ये ठीक है, इस हिसाब से आपने चेंज भी करना है। ठीक है, तो ये मैंने स्टार्ट क्या लिया था, मैंने एज अ टीम लीडर स्टार्ट लिया था एक कॉल सेंटर में पाकिस्तान में, तो वो मैंने डाल दिया मैं क्या करता था। ओके, तो दिस इज़ वेरी यूनिक एंड वेरी डिसेंट एंड टू द पॉइंट फॉर्मेट। आई थिंक ये आपको हेल्प करेगा आपको स्टैंड आउट करने के लिए बाकी लोगों में। आपको पता है जब भी कोई अप्लाई वैकेंसी आती है तो बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो बहुत सारी वैकेंसीज़ क्या बोल रहा हूँ मैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस में शॉर्टलिस्ट होना बहुत मुश्किल होता है। तो आप प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए। एंड एक डिस्क्लेमर बोलें या आई डोंट नो क्या बोलते हैं, मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ। मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ किसी को, मैं किसी को हेट नहीं मतलब फैला रहा। बीइंग अ मुस्लिम आई डोंट वांट टू बीइंग अ पार्ट ऑफ सिन, और गुनाह नहीं का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ। तो इफ़ यू आर अ मुस्लिम, आई वुड सजेस्ट यू कि आप ऐसी एयरलाइंस में अप्लाई ना करें जो अल्कोहल सर्व करती हैं। गुनाह है सर्व करना भी, ठीक है। अब बिफ़ोर मैं भी ये सोचता था चलो वो ख़ुद पी रहे हैं पागल के बच्चे, तो मैं तो सर्व नहीं, मैं तो पिला नहीं रहा हूँ ना, वो ख़ुद मांगते हैं तो मैं पिला दूँगा, तो मुझे क्या गुनाह होगा। बट आई थिंक इसमें गुनाह है, आप इसका हिस्सा ना बनिए। और कुछ लोग सजेशन देते हैं चलो आप ना ही आप सर्व मत करना, जब आप ऑन बोर्ड होंगे तो आप अपने कुलीग को बोलना कि आप सर्व कर दो, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ तो मैं सर्व नहीं कर सकता हूँ। तो हर रिलीजन का अपना अपना कुछ रूल्स रेगुलेशन है, कुछ चीज़ें हैं जो आप बियॉन्ड नहीं, मतलब आप आउट ऑफ लिमिट नहीं जा सकते हैं। तो मैं किसी के मज़हब को गलत नहीं बोल रहा हूँ। मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं जो क्रिश्चियन हैं, हिंदू भी हैं, सब बहुत सारे हैं। तो प्लीज़ आप कोई भी शख्स ये उठ के मत बोलिएगा कि मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ या उसके ख़िलाफ़ हूँ। दिस इज़ टोटली योर चॉइस। मैं अपने सर पे गुनाह नहीं लेना चाहता हूँ। तो इस वजह से आई कैन नॉट सजेस्ट कि आप एमिरेट्स में अप्लाई करो, या मैं यही सजेस्ट करूँगा आप वहाँ अप्लाई करें जहाँ अल्कोहल सर्व नहीं होती है।
बाकी आपकी मर्ज़ी है, इट्स योर टोटल योर डिसीजन. थैंक यू सो मच and I have to leave now. I really appreciate your time. Thank you so much for watching this long video, 15 minutes and some seconds. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. कुछ और है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर ईमेल एड्रेस इन द कमेंट, क्योंकि जब आप ईमेल ऐड करेंगे ना कमेंट में, तो मैं फ़ौरन से उसको ईमेल पे आपको ये वर्ड का फॉर्मेट भेज दूंगा ताकि आप फ़ौरन से उसको एडिट कर सकें. ये वीडियो देखने से आपको सिर्फ नॉलेज मिला है, लेकिन आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे ना. अब आप क्या बैठ के उधर कॉपी करेंगे मेरी CV कैसे बनी, तो मैं भी ऐसे बनाता हूँ, बहुत टाइम लगेगा. मैं आपको वर्ड में बनी बनाई CV देता हूँ, आप जैसे अपना डाटा चेंज करिए, डालिए और अप्लाई कीजिए. थैंक यू गाइस. अस्सलाम वालेकुम.